2907th episode of India's most happening Facebook live शो का नाम है राज की बात इंदौर डिजाइन अवार्ड के साथ रियली वांट टू थैंक स्पेसवुड मॉडर्न लिविंग इंदौर प्रेजेंटिंग राज की बात इंदौर डिजाइन अवार्ड के साथ इन एसोसिएशन विद इको स्ट्रक्चर्स one of the best facade companies in India, and also can't forget to thank the best Vastu specialist in the country, architect Mala Dwivedi's IP Vastu. मेरे साथ मेरे आज के मेहमान हैं. He is a super specialist with designs, with architectural projects, with the best of mind when it comes to not just the creative part but the sustainability part of any structure. Please welcome my guest today, the very experienced and one person I think everybody will fall in love. Please welcome my guest, architect Raj Vaswani sir. Sir, नमस्कार. नमस्कार सर, स्वागत आपका राज की बात Thank you. कैसे हैं सर आप? ऑल गुड. आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सर, सबसे पहले तो ये कि इट्स बीन गुड 28-30 years नाउ ऑफ प्रैक्टिस. यस. जब 30 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 28 साल पुरानी जब बात करूं, तो so what made you choose this profession? Why did you become an architect? I became an architect because my father and my elder brothers went into this field, and practically they gave me no other option but only architecture. जी. So I was mainly an outdoor guy. My main interest was playing cricket, football, and I had this dream of entering into an army kind of a thing, some outdoor activities. But finally being this into a family business, so I became an architect. And I struggled for a few years because I couldn't accept the whole idea that I had this outdoor mentality kind of a thing, and then architects normally sit within the cabin and design buildings. Right. So this took me a lot of time to accommodate myself, adjust myself. But yes, finally sab ho gaya. And today we're doing some good projects in Indore and in regions around. सर, जब हम इस प्रोफेशन की बात करते हैं तो एक मानसिकता है, और वो थॉट प्रोसेस जो है वो एक आर्किटेक्ट को बस एक ऐसे प्रोफेशनल की नज़र से देखती है जिसका काम डिज़ाइंस बनाना, स्ट्रक्चर्स बनाना है, या फिर लाइजनिंग के काम में एक अहम किरदार निभाने का एक रोल एक्सपेक्ट किया जाता है. सर, आपकी जो डेफिनेशन है आर्किटेक्चर की या एक बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग अ प्रोफेशनल की, वो क्या है? Whatever you said is right, and that's the sad part of this profession. But I think इस profession में जो मैंने realize किया during this journey of 28 years is that architects and architecture is beyond people and beyond space. It's for the larger communities. It's for the larger society. How we can really create designs, spaces, places for people to really live on them and enjoy. सबसे इम्पॉर्टेंट कभी बात मुझे ये लगती है कि क्या आपकी बिल्डिंग देख के आपका यूज़र खुश होता है कि नहीं होता है, इज ही हैप्पी और नॉट. दीज फीलिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक लाइजनिंग वगैरह वगैरह तो ये तो एक बाय प्रोडक्ट नेसेसिटीज़ बन गई हैं बेस्ड ऑन सिटी टू सिटी एक्सपीरियंसेस. But architects today have a larger role to play in societies, but we need to play that role. Like our buildings should go beyond this space and time, and people should start seeing them as a part of their own living. जब वो चीज़ होने लग जाएगी तो आई थिंक आर्किटेक्ट्स का रोल बहुत ज़्यादा ऊंचा चला जाएगा, एंड उनकी सोसाइटी में रेलेवेंस भी बढ़ेगी. अभी नाउ वी उस लेवल पे आई थिंक दिस प्रोफेशन एंड अस प्रोफेशनल्स हैव नॉट बीन एबल टू अचीव दैट लेवल. For example, academics is one major area where architects should venture into it. Every architect I feel should venture into academics of some kinds. He should become an educationist. He should become a good observant. He should start analyzing situations and see how these situations can help in our design process or building a good society or a happy living spaces. So roles architects का बहुत ज़्यादा है, but unfortunately अभी वो चीज़ मार्केट में नहीं फील होती लोगों को. सर, जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, डिज़ाइंस की बात करते हैं, स्पेशली जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो उसमें हम वास्तु कंपोनेंट या बहुत सारे कंपोनेंट्स आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं. एक तरह वास्तु, सोलार, ये सब कंपोनेंट्स हम कर रहे हैं. लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इट शुड बी मेमोरेबल, इट शुड क्रिएट अ स्पेस
not just in people's heart but also in people's life. So क्या हम एक आर्किटेक्ट ऑनेस्ट, और मैं चाहूँगा भाई बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन दे इस पे, कि क्या आप मानते हैं कि हम जिस शहर में, जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ पर आर्किटेक्ट्स एनवायरनमेंट के बैलेंस को समझकर स्ट्रक्चर्स खड़े कर पा रहे हैं? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और काफ़ी आई मीन इसका आंसर इस तरीके से किया जाएगा कि यस, एक अवेयरनेस आ गई है, एक कंसर्न जाग गया है, पीपल आर नाउ सीरियसली लुकिंग इनटू हाउ टू मेक द बिल्डिंग मोर सस्टेनेबल, मोर cost effective also, I would say in one sense, and how closer we can get to the environment. But somehow अभी क्या हो रहा है, अगर हम एक स्टेप बैक लेके समझेंगे इसको, इंडिया और स्पेशली इन द रीजन वी वर्क इज, these are highly urbanizing spaces हो रहे हैं सिटीज़ में जी. एंड यहाँ पे अभी बेसिक, सबसे पहले हम बोलते हैं बेसिक इकोनॉमी मीट आउट होती है जी. तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो शहर जो है या हमारे रीजन जो है अभी बेसिक इकोनॉमी लेवल पे भी नहीं आया है, बिकॉज जब तक हम बेसिक इकोनॉमी को अचीव नहीं करेंगे, आई थिंक दूसरे पैरामीटर्स को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है. तो जब तक हमारी बेसिक इकोनॉमीज के ऊपर नहीं आएंगे, अभी मैक्सिमम जो हमारा क्लाइंटल है वो आके हमसे एफएसआई की बात करता है कि हाउ मच एफएसआई वी आर अचीविंग और कितना हम सेलेबल एरिया इनको दे रहे हैं जी. बट जब तक आर्किटेक्ट का और क्लाइंट का फोकस ये सवाल की जगह ये सवाल पूछे जाए कि हाउ मच ओपन स्पेस वी आर गिविंग, हाउ मच ट्रीज वी आर प्लांटिंग ऑन आवर लैंड, हाउ मच एनवायरमेंटल कंसर्न्स वी आर डिजाइनिंग इनटू आवर बिल्डिंग्स, जिस दिन ये सवाल पूछे जाएंगे एक आर्किटेक्ट से, आई थिंक एक आर्किटेक्ट तो अवेयर है बट ओवरऑल सोसाइटी को अवेयर करने के लिए दीज क्वेश्चंस हैव टू बी आस्क्ड एंड दीज क्वेश्चंस देन विल बी आंसर्ड इन अ मोर प्रैक्टिकल प्रोफेशनल मैनर. अभी है अवेयरनेस, बिल्कुल है, ऐसा बात नहीं है कि देयर इज नो अवेयरनेस, पीपल आर कंसर्न. आज हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं कि गर्मी में सिग्नल के नीचे, हम कभी आप सिग्नल के आसपास देखो तो टू व्हीलर वाले पेड़ ढूंढते हैं कि पेड़ कहाँ हैं, तो वो अपनी गाड़ी वहीं पार करते हैं क्योंकि धूप स्ट्रांग है. तो ये एक अवेयरनेस फैक्टर है कि यस वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज. तो सिमिलरली ऑन अ सिटीज लेवल ऑल्सो वी नीड टू थिंक इन दैट मैनर कि आज हम मेट्रोज बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, कॉन्क्रीट रोड्स बनाए जा रहे हैं, बट सवाल ये उठता है कि आज जो जितने भी कॉरिडोर्स में ये ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रोज बन रहे हैं, क्या उस लेवल का ट्री का प्लांटेशन हो रहा है और किस क्वालिटी की ट्रीज की प्लांटेशन हो रही है? ये सवाल जब तक हम एज अ सोसाइटी एक दूसरे से नहीं पूछेंगे, आई थिंक ये चीज़ सिर्फ अवेयरनेस लेवल पे ही रह जाएगी. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चंस, द पीपल नीड टू आस्क. नाउ एक छोटा एग्जांपल, वेरी डिटेल्ड एग्जांपल है. आप अगर नॉर्मली इंदौर मेट्रो जो बना है अभी ट्रैवल करेंगे तो कनेर का एक प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे. ना कनेर का प्लांट इन रियल सेंसेस इज नॉट अ वेरी I would say a tree which evokes emotions, a positive emotion, and neither it gives a lot of shade, neither it gives a lot of greenery. It's a very slow growing herb kind of a thing. So what kind of trees we need to plant is something we need to question. ये questions missing है, and that is why ये चीज़ें सिर्फ awareness level पे ही रह रही है. But I would say yes, awareness काफ़ी बढ़ गया है. लेकिन सर जब हम एक आर्किटेक्ट की इन्वॉल्वमेंट की भी हम बात करते हैं तो ऑन अ पॉलिसी लेवल एक आर्किटेक्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है. इट्स बीन ऑब्जर्व्ड कि एक आर्किटेक्ट का इन्वॉल्वमेंट सब कुछ होने के बाद सिग्नेचर के या स्टैम्प के माध्यम पर आकर अटक जाता है. इट इज ये कितनी बड़ी विडंबना है या कितना दुखद है आप लोगों के लिए जो इस प्रोफेशन से इतना डीप जुड़े हैं? Very painful. I personally, in my office personally, we have been interacting with government for policy making, for bylaws, but we are not very successful in what we really desire of. Again, bureaucracy has its own pressures, political concerns है, अपने agendas बना के आती है, उसके agenda में आपके theories कितनी set होती है वो एक अलग बात है. But जो सबसे ज़्यादा painful ये होता है कि we all need good environment, but we are not understanding the definition of good environment.
And yes, consultants are not understood at that level in the real senses the way they should be understood. Yes, सिर्फ साइन वर्क के लिए हम लोग होते हैं, बट हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत डीप होना चाहिए. लेक प्रोटेक्शन फॉर एग्जाम्पल, नाउ सिटी का मास्टर प्लान बन रहा है और आपके मास्टर प्लान में लेक्स ही गायब हो जा रही है, जो ओरिजिनल लेक्स हैं या जो लेक्स बन सकती है फ्यूचर में विद द हेल्प ऑफ द कॉन्टूर्स, जो स्लोप्स है हमारे. क्योंकि भगवान ने कोई भी ज़मीन फ्लैट नहीं बनाई है, भगवान ने फ्लैट ज़मीन बनाई है विद कॉन्टूर्स. ही हैज़ गिवन यू स्लोप्स. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन टू ह्यूमन हु इज रिकग्नाइजिंग दो स्लोप्स, एंड वो स्लोप्स को बेनिफिट कहाँ ले जाता है. पुराने ज़माने में जो हमारे सिटीज़ बनते थे, इवन आई वॉज छतरपुर एक छोटा सा शहर है जहाँ मेरे कुछ काम चल रहे हैं, मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे 7 लेक्स हैं. इट्स अ स्मॉल टाउन. वाह. बिकॉज पुराने लोगों ने स्लोप्स के हिसाब से पूरे लेक्स को प्रिजर्व किया, एंड फॉर्चुनेटली द लेक्स आर इवन प्रिजर्व टिल टुडे. एंड अगर उसको मास्टर प्लान में हम प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करें, एंड डेफिनेटली अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, लालच कहाँ जाता है. आज बिलावली टैंक है हमारे पास इंदौर में, इतनी बड़ी टैंक है. मैं कह रहा हूँ बिलावली टैंक से 3 किलोमीटर में 0 FSI कर देना चाहिए. द मोमेंट यू डू 0 FSI देयर विल बी नो कंस्ट्रक्शन. जी. आप 3 किलोमीटर के बाद आप 10 FSI दे दो. सो जो इंसान अगर कोई लैंड खरीद रहा है, अगर वहाँ उसकी लैंड अगर लेक से टच कर रही है तो वहाँ 0 FSI मिलता है, पर उसकी बैलेंस लैंड में ही कैन फेच मोर FSI. So I think that balancing out situations we need to understand with these growing urban pressures and growing greed for the land, more of land, reclaiming these softer lands which are meant for good environment. Birds आती हैं वहाँ पे, trees grow होते हैं. तो ये policy level पे yes we have to be very strong, but you know the scenario now. सर एक और बात जो आपसे बात करते करते जहन में आई, और वो है जो प्राइवेट मेकर्स भी जो होते हैं स्ट्रक्चर्स को बनाने वाले, मैं बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों की बात कर रहा हूँ सर. वो भी, उनका भी मेन फोकस FSI होता है. उनका भी मेन फोकस जो होता है वो आप वर्टिकल ग्रोथ आप कितनी ज़्यादा कर सकते हो उसके ऊपर में उनका मेन एस्पेक्ट होता है. ये जो वर्टिकल ग्रोथ हम देखेंगे, ये जो सीमेंटिंग हम देख रहे हैं, ये जो हम एक नॉन नेचुरल या नॉन ऑर्गेनिक ग्रोथ जो हम देख रहे हैं, सो ये इसकी सस्टेनेबिलिटी को लेकर क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं. पुराने घर बनते थे तब ब्रिटिशर्स के दौरान जो घर बनते थे उनमें आज भी AC की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल कूलिंग उसमें हो जाती है. और आज सर एक शहर के टेम्परेचर तापमान इतने बढ़ गए हैं कि एक क्लोज रूम में भी AC शुरू है लेकिन थोड़ा सा गर्मी महसूस कर रहे हैं. इसको मैं 2-3 तरीके से अपन बात करेंगे इस पे. वन इज़ दैट जो अभी अर्बन ग्रोथ हो रही है या अर्बन डेंसिफिकेशंस हो रहे हैं, आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज़ दैट बिटवीन द प्राइवेट डेवलपर्स एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एक तरीके का joint ventures. I would say that densification can be taken as a very positive way of saving your environment. जी. Because जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई what the government needs to do and what the private developer needs to do. Now what the government needs to do is government needs to make a plan of sensitive areas, and the government needs to say, well, these are the areas where we cannot build anything. Maybe it could be a river areas, it could be a lake areas, it could be a forest areas, it could be a mountain with which has its own natural resources happening. So the government, the master plan format should be made in such a way that the government should identify these very very sensitive zones, okay, and say that these are zones with no development. And similarly, the government needs to identify zones which say that these areas we can build. But now when I say that these areas are going to be built, then I need to identify the FSI also. I need to, because ultimately ये जो sensitive areas हैं ये develop कौन करेगा? Let the private developer develop it. And there are cases happened in India also and abroad में तो बहुत सारे cases हैं where joint ventures में government और private developers and they have saved lakes, rivers, mountains, ridges, valleys, and they've saved. And the real estate guy has got his own FSI. रियल एस्टेट गाय को क्या चाहिए? ही नीड्स हिज FSI. ठीक है, आप यहाँ नहीं दे रहे, मुझे यहाँ दे दो.
उसका पर्पस है प्रॉफिट. जी. आई विल टेल यू वेरी स्मॉल एग्जाम्पल जो आपको भी याद हो. जयपुर में एक आमेर पैलेस जी. जाते हैं. बिल्कुल. कुछ साल पहले वो आमेर पैलेस वाला जो लेक था वो एक ट्रैश गार्बेज बिन टाइप था. बिल्कुल. So there was this, here came a Jaipur guy coming to the government. He says, okay, I'll save this lake. There's a monument and I'll protect everything here. I'll do all the development. You give me land for my entertainment park. And there was a deal happened. Deal happened. Government signed the contract. This guy must have invested 100 crores some to save the lake. And today that lake is actually there. Yeah. There's a lot of water. And it's a big promenade where people are coming, visiting, very enjoying, clean. And very clean. But government ने उसको जो promise किया वो नहीं किया पूरा. अरे. So you know we need to understand this because private developer is, देखो private developer को profit चाहिए. आप दो उसको profit. जी. He is coming to earn money. But how to make him earn money is something where the government now needs to sit with him and talk one-to-one, not through policies. And this has happened. ऐसा नहीं कि cases have not happened in India और मुंबई में ऐसे cases नहीं हुए हैं where one-to-one the government has sat with these private developers, worked out a scheme and these schemes have come out also. Success rate maybe 50%, 40%, but so that negotiation has to happen. Now the other part is yes. विद द ग्रो, देखिए क्या है, जैसे जो आपने कहा कि भाई पहले एसी यूज़ नहीं हुआ करते थे, छोटे घर थे, पॉपुलेशन तो ग्रो हो रही है ना. हाउ डू यू अकोमोडेट दीज काइंड्स ऑफ पॉपुलेशंस? बट टुडे देयर इज, आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट आर्किटेक्ट, ही इज एन आर्किटेक्ट टर्न इनटू अ बिल्डर इन बैंगलोर हु डज वेरी सस्टेनेबल हाउसेज इवन फॉर 10 to 15 floors. Though he uses concrete, there's a new technique he uses which is called a filler slab concrete, right, which doesn't require too much of concrete. So it's a mixture of clay and cement. So he's using those technologies to save on the environment. Then today there are techniques like jack arches where you can actually save concrete and make the roofs in brick also. There are precast methods to save on your environment. So there are techniques. बट हर टेक्निक का क्या होता है कि एक कॉस्ट होती है जी, और हर टेक्निक का एक वेंडर या प्रॉपर एजेंसी होती है जो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है. सो आई थिंक दीज थिंग्स ग्रेजुअली आर डेवलपिंग. लाइक आई वुड नॉट से हमारे रीजन में ही बहुत सारा चल रहा है, बट येस डाउन केरला, डाउन साउथ, बैंगलोर साइड, there are architects and builders who are working on very sustainable apartments, high-rise apartments like 10 floors, 15 floors, 20 floors. They are working on it, how to make it even more effective in terms of constructions. I think 3D printing जो आ रहा है, that might take things to a different level. I'm sure. And there are a lot of these things that are gradually creeping into our industry. But definitely उसको mass level पे जाने के लिए it will take its own sweet time. But things are happening. So there is a trend. आपसे ये सवाल कि ठंडी चाय पीने में आपको कितना मजा आता है? बिल्कुल नहीं आता है. बिल्कुल नहीं आता है. जी. सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एनवायरनमेंट और आर्किटेक्ट्स का जो एक मिसमैच हुआ, बैलेंस नहीं हो पाया, पॉलिसीज और आर्किटेक्ट्स का जो एक मिसबैलेंस हुआ, उसको लेकर वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन में है और मैंने शायद गलत बटन दबा दिया. ऐसा क्या होता है सर कि आर्किटेक्ट को अगर बोला जाए कि आपको राजवाड़ा बनाना है और क्लाइंट इंटरफेयर नहीं करे, तब तो आर्किटेक्ट सबसे सुंदर बिल्डिंग, सबसे अच्छी बिल्डिंग, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग बना सकता है. जी. इशू कम्स व्हेन देयर आर लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स हु गेट इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस. जी. तो देन केटरिंग टू दिस इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स, तो कहीं ना कहीं आपका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्चुलाइजेशंस हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि सिटीज लाइक आबू धाबी और दुबई और गल्फ जो भी हो रहा है, जिस टाइप का आर्किटेक्चर वहाँ बन रहा है, these cities are going to change the way architecture will be seen in the next coming 50-100 years. The state of art. The state of art. Their buildings are amazing. Superstar architect Norman Foster, Zaha, Frank Gehry are working there. Amazing buildings, no cost restriction, absolutely environment friendly things. Cost की तो बात ही नहीं होती है. मतलब वहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं कि आप, you just have to create an idea. What they require is ideas. So I think ये जिस दिन इंडिया में भी होगा, जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तब आर्किटेक्ट और एनवायरनमेंट जुड़ जाएगा. सर एक क्विक रैपिड फायर आपके साथ चाहता हूँ. सर
अब तक जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं 28 सालों में, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल के करीब है? एक मेरे को मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर है जो मुझे बहुत क्लोज लगता है, जो मेरे एस्पिरेशंस के बहुत क्लोज आता है। कुछ फ्यू रेजिडेंसीज मैंने किए हैं महू में जो मेरे काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, प्राइवेट बंगलोज वगैरह काफ़ी आता है। एक हॉस्पिटल हमने भी अमरावती में कंप्लीट किया है जो अगेन कोर्टयार्ड पैटर्न पे हमने इसको वर्कआउट किया है। So few hospitals which are doing in Indore also we have worked on this courtyard style patterns where we're trying to do passive environmental concerns and all. So there are few which have come close to what जो हमारा एक ओरिजिनल परसेप्शन है. Yes. सर, अगर कोई आर्किटेक्ट राज वासवानी सर के साथ काम करना चाहता है तो वो किस किस्म के माइंड को लेकर आपके साथ आए कि आप मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, पर्सपेक्टिव के साथ काम करते हैं, या यू लुक एट लग्जरी? The kind of person I am, I would say minimalistic. Luxury for me is good detailing, refined detailing, and luxury for me would be good views, a happy space where people can gather, enjoy, good sunlight into the house, good breeze happening within the house. That is the kind of luxury I would prefer, not the artificial ones, and basic simple structures. One space of life, one space of home, you think everybody should have that space of home? Everybody should have. Or in terms of design you're talking? In terms of design. I always feel that जो हमारा जो family space होता है जैसे living area, आप ये पूछना चाह रहे हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. जो लिविंग एरिया होता है जहाँ पे हम हमारी बहुत सारी मोमेंट स्पेंड करते हैं और जैसे संडेज का पूरा दिन स्पेंड करते हैं, दैट इज़ वन स्पेस आई थिंक दैट शुड बी सीक्रेट टू एवरी हाउस एंड दैट शुड बी डिजाइन्ड एज पर आर यूजिंग पैटर्न, द सनलाइट्स एंड ब्रीज हैपनिंग, एंड इट शुड बी फ्लडेड विद ट्रीज. सो दैट्स द काइंड ऑफ इमेजिनेशन आई हैव फॉर द लिविंग स्पेसेस. सर, व्हाट्स योर थॉट ऑन सोलर एनर्जी? एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट. नेट मीटरिंग से करना है, पैसा बचाना है, और ऑब्वियसली सोसाइटी विल बी मोर बेनिफिशियल. ग्रीन आर्किटेक्चर डिफाइंड है या अभी भी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बात नहीं होती? Green architecture is gradually defining itself and gradually coming into our buildings also. Okay. Sir, what's your thought on वास्तु? वास्तु के बिना तो लाइफ ही नहीं है, बट वास्तु जो आज का टाइम के हिसाब से हो रहा है, दैट आई डिसएग्री. वास्तु यस, वास्तु इज रिलेटेड टू योर डायरेक्शंस. वास्तु रिलेटेड टू योर measure of sunlight, from which direction you should fetch how much sunlight. Vastu is a measure where how you shadow your building from the harsh suns. Vastu is a measure how you let in cool breeze and allow warm breeze to move out. I think if you look at Vastu from these parameters, I would say yes, Vastu. But if you look at from the wealth aspect जो आजकल चल रहा है, I disagree. So what's your thought on how should a young architect, interior designer look at vendors, a place for just acquiring or getting stuff for your structure or your building, your interior, or a point of knowledge as well? 100% knowledge. He should understand detailing, how he can incorporate those details into his architecture, and how his architecture could be benefited through those simple little new upcoming details of, like, maybe it could be a detail for a window or a jamming or a door, whatever. Yes. Unethical modes of changing views of architects and interior designers when it comes to commercialization. What's your thought on that? No, I don't want to comment. So when you see associations and organizations who work for the betterment of the fraternity of architects and interior designers, वो आर्किटेक्ट्स की फ्रेटर्निटी एसोसिएशन हो या इंटीरियर डिज़ाइनर का IIID हो या IIA हो, सर, हाउ डू यू सी देम? आर दे वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन? इज देयर अ पीस वेयर यू वुड लाइक टू गिव देम एन एडवाइस? You see, definitely organizations बहुत important होती हैं, because organizations के बहुत ज़्यादा roles होते हैं where they make you see a future maybe. आपको आगे क्या होने वाला है आपके प्रोफेशन में, उसके बारे में मालूम पड़ जाता है थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन दे डू कॉन्फ्रेंसेज और एग्जीबिशंस.
You get to meet so many different thoughts and ideas. You interact with so many emotions there, and you understand people, how things are done, how things are not done. You understand where you stand actually. So that definitely it's a big win. And then how you carry it further in your own personal life and in your own professional life, it depends on individual. So, what's your perspective or a piece of advice you like to give to architects, interior designers who, before passing out, make their visiting cards? Look, if they are good enough to handle the pressure of the clients, then yes, why not? They have, it's a free world. But I would always put into that कि जितने भी youngsters हैं, they should work under some architect for few years at least, and पर वो किस architect के पास जाना चाहते हैं, वो choices उनको करते आनी चाहिए. Because they should know what they want from life, उनको क्या चाहिए. And secondly, what field they really want to enter. Sometimes, I know so many young architects who after even graduating from BRs, वो लोग total confused होते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमको कौन से field में जाना है. So I think we should act as counselors also with them and interact with them as to where to take them. But a positive interaction has to happen and a very consistent interaction. I think what is missing in our society, between the architects, the students and the fraternity is dialogue. I think हम जरूर conferences में कहते हैं कि ये dialogue है, but somehow ये dialogue नहीं, ये one way speeches हैं. जी, one way communication. One way communication. We should dialogue with them. We should spend time with them, understand their, where they lack, how they lack, and why they're lacking, and then, if possible, so I think a constant dialogue will help this. A logical duration of internship should be 1 year. You say minimum? This is minimum. This is minimum. This is minimum. Sir, and उसमें से अगर आप आगे पूछोगे मेरे से तो मैं ये कहूँगा कि 6 महीने तो सिर्फ उनको साइट्स पे ही खड़े हो करना चाहिए हमको. उनको ऑफिस भी नहीं आने देना चाहिए. They should stand, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, ठंड हो, they should stand on the site and interact with the contractors, the laborers, and every nuances of construction, how it happens, how it grows, how a brick is laid. They should visualize, see it, sketch it down, rest 6 months, sit in the office, and then understand, analyze, and move ahead. Sir, when it comes to your piece of advice or your choice you will make at a situation where there is a product जिसमें जो प्रोडक्ट है जिसको एंडोर्स कर रहा है क्रिकेटर या एक फिल्म स्टार है, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वैल्यू फॉर मनी है बट डज नॉट हैव अ ब्रांड endorser, which product which you will I would buy? say a product which helps my architecture to become better. Value for money obviously तो होता ही है, but I would say जो मेरे आर्किटेक्चर को ग्रो करेगा, जो मेरे आइडियाज़ के साथ सिंक करेगा, वो प्रोडक्ट आई वुड प्रेफर. भले वो नॉर्मल मार्केट से भी मिलता हो तो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न. Sir, given a choice, will you go back to college and teach? I am a visiting faculty, by the way. No, but then I'm saying on a regular basis. No, I have my reasons to say that. Because I shouldn't be speaking on this or on this diet, but because there is lots which go behind education also, which is not a very healthy thing to discuss on this platform. But I would say yes, we should keep interacting with students. We should have a dialogue. We should, in fact, the other day I was conducting a jury in one of the architecture colleges of Indore. I have suggested to the institute that every 15 days we should interact with the students, have a good dialogue with them, understand their concerns. Because I feel that regular teaching in architecture का जो essence है और जो एक seriousness है, commitment, वो fail हो जाते हैं. Then you enter into protocols. Then you enter into कि ये भी करना है, ये भी करना है. तो आपका जो essence है, जो आपका real जो वो miss out हो जाता है. तो I think full-time teaching, so I would say a blank no. But Sir, yes. one thing you think should be taught apart from the curriculum to all architects and interior designers should be a part of their extracurricular activity or knowledge. What should that be? Look, physically I would say sketching, touring, they should keep walking, and सबसे important बात है, they should not ride, walk their cities, walk to their places,
observe people, sit in a space and see what people are doing, how they are behaving in a space. ये बहुत ज़रूरी है. I think जब तक हम देखो अल्टीमेटली आई फील आफ्टर ऑल दिस एक्सपीरियंस आई फील दैट वी आर डिजाइनिंग फॉर पीपल, फॉर देयर इमोशंस, फॉर देयर फीलिंग्स एंड फॉर देयर एस्पिरेशंस. तो जब तक हम पीपल को ही नहीं समझेंगे तो उनके डिज़ाइंस को हम कैसे समझेंगे. हाउ every individual wants to use a space is so different. I want to use my space in a different manner. My brother might use that space in a different manner. So I need to understand these differences and then design a space. अब आगे क्या? What's in the bucket list of architect Raj Vaswani? In terms of projects? Personal, professional? Look, we, in terms of personal, हम लोग एक community चलाते हैं यहाँ पे. And she is also, Karuna is also a member of this. Karuna is also a part. We do this urban sketching community. Every Sunday we meet to, they're all young people who come, we sketch. And it's been almost now, I think, 1.5 years we've been sketching. And we have sketched a lot of places in Indore, and 2 times we've been outside Indore also. So I think that is something which is very inspiring for me. And we started this after we left COVID only. And it's still continuing. We got a good young group of it. So that part is yes. And traveling, I love to travel. Professionally कुछ ऐसा काम करना है जो मेरे अभी professionally क्या होता है, बहुत सारे challenges हैं. देखिए कि now I am doing a range of projects. I'm from real estate to private houses to hospitals to hotels to so I have realized कि जैसे real estate guy के साथ आपको बहुत अलग तरीके से बात करनी पड़ती है. होटल क्लाइंट है तो उससे बहुत डिफरेंट टाइप से बातें करनी पड़ती है. हॉस्पिटल वाले से डिफरेंट टाइप से बातें करनी पड़ती है. सो हर एक के अपने अपने कंसर्न्स हैं और ये है. सो बट एक कॉमन पैरामीटर जो मैं आजकल थोड़ा सा पुश करता हूँ विथ माई क्लाइंट्स इज ऑब्वियसली द ग्रीन स्टफ. लाइक हाउ टू गेट ग्रीनरी इन टू आवर बिल्डिंग्स, हाउ टू मेक स्पेसिस विच लुक मोर ग्रीन. तो ये कॉमन एजेंडा मैंने अपना खुद का बना रखा है. आई ट्राई, नॉट दैट आई एम वेरी सक्सेसफुल येट, बट वी कीप ट्राइंग. सर, अगर आर्किटेक्ट्स की एक सुनहरी किताब लिखी जाती है, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा जाता है आर्किटेक्ट राज वासवानी, उसके नीचे कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस, क्या थॉट, क्या कोट, क्या आप ऐसा लिखते जिसे पढ़ने के बाद एक यंग एस्पिरेंट उसे पढ़ता, समझता और उसको फॉलो करता? I mean, in single caption, live with yourself, live with your emotions, I would say. And I think, I don't know, Madhu, I think this is a... What else? सर, उम्मीद है कि आप ऐसा ही अच्छा काम करते रहें. सर, अब तक तकरीबन 250 से ज़्यादा आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ इंटरव्यू हुए हैं और ऐसे भी हुए हैं जो नेशनल बॉडी तक भी पहुँचे हैं. और मैं पहली बार ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मेरा वाकई में सौभाग्य है कि मैं आपके जैसे आर्किटेक्ट के साथ मेरी बात हुई. जो आज आपने बात की, मैं उम्मीद करता था कि ये जितने भी लोग इस फील्ड में हैं वो ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, बिकॉज ज़रूरत इसी की है. आप इस शो पर आए, आपने अपना वक्त दिया, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you. It's an honor talking to you, sir. Thank you. आर्किटेक्ट राज वासवानी सर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. एक बड़ा अच्छा शेर है जो कहता है कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है. वाह. उम्मीद है कि ये जो पूरा थॉट था आज इस इंटरव्यू में, अगर आप देखेंगे तो जो मेजर बात हुई है इस इंटरव्यू में वो एक आम आदमी की हुई, एक आम आदमी की ज़रूरत की हुई, एक आम आदमी के सपने की हुई, एक आम आदमी की संकल्पना की हुई है. लेकिन घूम फिर कर हम ये बात किससे उम्मीद करते हैं? और उम्मीद करते हैं हम सरकार से, जो शुरुआत सर से होती है और ख़त्म उनकी कार में हो जाती है. इसीलिए शायद वो सरकार है. लेकिन अपेक्षा क्या है? एक नए भारत के सपने क्या है? क्या आने वाले वक्त में क्या हम इससे ज़्यादा गर्मी सह पाएंगे? क्या आने वाले वक्त में क्या हम इससे ज़्यादा क्लाइमेट डिसबैलेंस सह पाएंगे? ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि किसी और से नहीं, हमने खुद से पूछना चाहिए. दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम कोई सरकार चुनते हैं तो हम सरकार को किस एस्पेक्ट पे चुनते हैं? ये कि वो कितना बड़ा डिफेंस बजट लाएगी,
वो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट लाएगी, या फिर हम ये सोचना शुरू करें कि उनके जो उनके जो पैरामीटर्स होते हैं जिसको लेकर वो पब्लिक के बीच में आते हैं और वादे करते हैं कि हम इस किस्म का काम करेंगे, उसके अंदर में एडुकेशन की कोई बात नहीं होती, उसके अंदर में हेल्थ की कोई बात नहीं होती, उसके अंदर में एनवायरनमेंट की कोई बात नहीं होती, और ये तीनों सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये तीनों बातों का कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, और फिर भी हम इन्हें अपनी देश और अपने प्रदेश की सरकार चुनते हैं। उम्मीद है ये बात सिर्फ हवा में ना रह जाए, ये बात दिमाग तक पहुँचे, दिल तक पहुँचे, और ये बात एक समझदारी स्वरूप लेकर आए, और हम आने वाले वक्त में जब भी कोई इलेक्शन का एक हिस्सा बने, तो जब भी हम एक वोट दें तो उस वोट में हमारे असली मतों का दान हो, ना ही सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए मतदान हो। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में भी एक ऐसा बेटा है जो अपने लिए बहुत कुछ सोचता है, अपने आसपास के लोगों के लिए उससे ज़्यादा सोचता है, और उनके आसपास में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित वो किस तरह से कर सकता है, किस तरह से वो बदलाव लेकर आ सकता है, उसके बारे में सोचता है। और ना ही सिर्फ सोचता है, लेकिन जब भी कुछ करता है अपने काम में भी वो सब जितनी भी बातें हैं उसको दर्शाता है। अगर वो सब कुछ ऐसा करता है तो समझिए वो आर्किटेक्ट राज वासवानी बन रहा है। अपने बेटे का सिर्फ नाम राज ना रखे, क्योंकि एक फिल्म में शाहरुख खान का नाम राज था, लेकिन उसको जीवन में असल में राज बनाए, जिसकी सोच आने वाले वक्त में राज करे, उसे राज वासवानी बनाए। जिंदा रहें। जय हिंद।